मेरा नाम ये आर राजा मोहिदीन, मैं डॉक्टर हूँ। मैं चेन्नई से आता हूँ। डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स चेन्नई. Post that I did my graduation in MBBS from Government Kadalur Medical College in Tamil Nadu. I completed my graduation in 2022. Since then, I've been preparing for the UPSC. For UPSC preparation, I came to Delhi in 2023. For the past 2 years, I've been staying at Jamia Millia Islamia Residential Coaching Academy in Delhi, and I've been preparing. मैं 3 अटेम्प्ट दे दिया. I've given 3 attempts, and in this attempt I gave my first mains, first interview, and I've cleared. My parents have always been a support to me. They wholeheartedly accepted my decision of pursuing the civil services post my MBBS graduation, and from then till now they have always been a support to me in all my endeavors. कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? I didn't study with a specific hour goal in mind. I will keep weekly targets and I will try to finish them. So some days I'll study for 5 to 6 hours. Some days it might go more than 10 hours also. I would say that the residential coaching academy at Jamia Millia Islamia was the single factor that completely changed my preparation in the past 2-3 years. The professor in charge, Samina Banu ma'am, has created a very conducive environment for all of us to study well. There is lots of library facilities are there, and the entire environment, the entire campus is really beautiful. So I would like to thank our vice chancellor sir also for that. And the seniors that are here, they helped me a lot in clearing this exam. I am very happy. I'm extremely happy for this. Yesterday I got to know this news from my friend, and I was extremely in shock because I knew that I might be there in the list, but getting a top 10 digit rank within the top 10 ranks, it was extremely a surprise for me. Sir, I usually don't study with specific hours in mind. I study for almost 5 to 10 hours. Just before the exam, it might go on to 15 hours also. But normally, I used to study for 5 to 6 hours. But those 6 hours, I used to concentrate well and study. I would ask them to take care of the mental resilience. They have to have mental resilience to clear this exam, because this is quite a long journey for most of us. Most of us will not be able to clear it in our first attempt. It might take quite a lot of years. So we have to have the mental resilience to go through all this. Have a good mental strength, have good mental support, keep your friends and family near. And with respect to the exam particularly, take a look at the syllabus. Just keep the syllabus beside you, keep your PYQs beside you, and that will be enough for you to clear this exam. It has come from a lot of places. A lot of the coaching industry, they have been calling me. Lots of my friends, relatives, my family, they have all been calling me. They are all very happy. They consider it their own personal success, and I also think it is a collective success of all my friends, family, because they have all been with me together throughout this journey of 3-4 years. मदर फादर क्या करते हैं? My mother and father both are in the Tamil Nadu Education Service. They are both principals currently in government colleges in Tamil Nadu. ये अटेम्प्ट बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने सर्विस के साथ दी है, और चाहे वो मेंस का रिजल्ट हो या मेरा फाइनल रिजल्ट हो, वो मैं ड्यूटी के दौरान ही प्राप्त हुआ दोनों. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि चलिए हम लोग ऑलरेडी हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, और अब और अच्छा मौका मिलेगा और मल्टी डायमेंशनल वे में हेल्प कर पाएंगे. तो अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा मोमेंट था. कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? आप बिहार के चंपारण की रहने वाली हैं, आपने बिहार का नाम रोशन किया और दिल्ली पुलिस का भी नाम रोशन किया. जी धन्यवाद. पढ़ाई मेरी स्कूलिंग जो है वो डीपीएस बोकारो से हुई है. क्लास 12 तक मैंने वहां से पढ़ाई की. फिर मैंने मेरा बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से किया. वहां से पास आउट होने के बाद फिर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई. तो उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस प्राप्त हो गई थी. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी मैंने क्लियर किया था और यूपीएससी भी क्लियर किया. उसके बाद से मैं दानिप्स में आ गई थी और कंटिन्यूअस सर्विस में थी. बट साथ साथ में जो पढ़ाई कर रखी थी, तो मन तो करता था कि और करे, इतना पढ़ा है और उसका यूटिलाइजेशन करे. तो अटेम्प्ट्स देना मैंने जारी रखा और फाइनली ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था. तो मैंने बहुत ही रिलैक्स वे में दिया कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और खोने के लिए कुछ है नहीं, कुछ मिल जाए पाने के लिए और तो भगवान ने चाहा तो बढ़िया हो जाएगा, और अच्छा हुआ. कितने घंटे पढ़ाई करती हैं?
देखिए, पढ़ाई इस बार मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की थी। मेरे पास बहुत समय नहीं रहता था, तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट किया, जहाँ कम समय में मेरा मोर कवरेज ऑफ द टॉपिक हो जाए। और जो मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन थी, जो पहले मैंने कर रखी थी, उस पे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये ऑनलाइन मीडियम से उसको सब्सटैंशिएट किया और फिर एग्जाम में अपीयर हुई। बीच बीच में जरूरत पड़ी तो मैंने छुट्टियां भी ली और डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन मिला उसमें। तो जब छुट्टियां होती थी तब तो सुबह से लेके रात तक पढ़ना ही होता था, बिल्कुल जितना भी टाइम मिल जाए। मुझे भी नहीं याद मैंने कितने कितने घंटे पढ़ाई की है उस टाइम में, बट काफी मेहनत की उस टाइम में और उसका आउटपुट पॉजिटिव आया। घर का सपोर्ट और ससुराल का सपोर्ट कितना मिला? जी, घर का सपोर्ट तो पेरेंट्स, मेरे से पहले उन्हीं का ड्रीम था। मदर ने बचपन से नर्चर किया था कि बहुत अच्छी सर्विस है, आपको जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में तो पेरेंट्स का, मदर फादर का तो था ही, ब्रदर का भी सपोर्ट था। बट अभी दिसंबर में मेरी शादी भी हुई, तो मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे हस्बैंड, हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो मेरे फियांसे थे, उस टाइम भी एक्चुअली ये फॉर्म भरने के लिए भी उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया था, क्योंकि इतना प्रेशर होता था। तो मैंने बोला कि बस हो गया, अब मैं नहीं अपीयर होना चाहती। और बट उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, एक बार दो, आपका लास्ट अटेम्प्ट बाकी है और आप करो अपना, आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो आप अपना 100% दे के देखो। तो सपोर्ट तो पूरा था, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ है कि जब से मैं फुल फ्लेजेड एसीपी लगी, सब डिवीजन इंचार्ज लगी, तो मेरे में एक कॉन्फिडेंस अलग सा आया लोगों को डील करने को लेके। तो मैं बाकी दोनों स्टेजेस का तो नहीं, बट मेरे इंटरव्यू स्टेज में मुझे बहुत हेल्प किया। और जब आप अंबेडकर नगर जैसे थाने को डील करते हो, जहाँ पे हर पॉसिबल टाइप ऑफ क्राइम है, हेवी थाना माना जाता है, साउथ का वन ऑफ द हेवीएस्ट थाना है, तो आप काफी खुले विचारों से सोचने लगते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी पड़ती है डे टू डे। तो उन सब चीजों का असर ये हुआ कि मेरा जो सोचने का तरीका था, नजरिया था, वो और एक्सपैंड हुआ। और फिर मुझे इंटरव्यू में उस चीज ने काफी हेल्प की थी और परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाइड होके आई थी। तो मैं बोलूंगी कि मेरे एक जॉब प्रोफाइल ने ऐड किया है मेरी पर्सनालिटी में और उसको और ज्यादा एनहेंस किया है। जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट था। मैंने मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी दक्षिण जिले से की थी और फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी एज एसीपी सीआर पार्क हुई। तो मेरा एसोसिएशन साउथ दिल्ली से रहा है। और लकीली जब मैं ट्रेनिंग टाइम में थी और जब मैं इधर एज एसीपी सब डिवीजन भी आई, तो जो ऑफिसर्स थे उनका काफी सपोर्ट मिला। हमारे चाहे डीसीपी साहब हो, जॉइंट सीपी सर हो, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू 18 फरवरी को पड़ा था। उस टाइम एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, काफी प्रेशर था पुलिस पे भी। तो मैंने भी 26 जनवरी की ड्यूटी के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि अभी इंटरव्यू अगर देना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की और सर ने मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत विलिंगली मुझे छुट्टियां दी थी और काफी सपोर्ट भी किया था, मोटिवेट भी किया था कि आप करो, अच्छे से करो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी जी जी, सबका फोन आया, स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, डीसीपी सर, और सबके तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया और काफी मोटिवेट भी किया गया है। और बस इन सब चीजों से बहुत ही अच्छा, फैमिली के तरफ से तो आ ही रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी विशेष से, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस की थी, तो वो जो रैंक आई है उस हिसाब से मुझे आईएएस अलॉट होना चाहिए। बाकी 2-3 महीने में सर्विस एलोकेशन आ जाएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो आई रियली वांट टू थैंक माय फैमिली, माय पेरेंट्स हू सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस जर्नी। इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग, सो आई थिंक एट दिस मोमेंट टू बी हम्बल एंड टू बी थैंकफुल इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से। कठिनाइयाँ तो यही होती हैं कि जब आपके पास एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है तो यू नो, आई मीन आप दूसरों से सीख सकते हैं, बट आई थिंक वो एक कमी मुझे खली। तो अगर आपके पास अच्छा ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, तो आप उससे एक दूसरे से सीखें। तो ये मुझे लगा मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा मिसिंग रहा इस जर्नी के दौरान।
I think motivation to more than motivation, I think the discipline is something that you need, the consistency. So that comes from your uh, what has encouraged you or what you really want to do, your progress in the past. सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड तो यही है कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एक पूरा मन बनाकर आइए कि हाँ पूरी इच्छा शक्ति से आप यहाँ पर आए एंड ऑल्सो कि एक बैकअप भी होना चाहिए वो मुझे फील हुआ इस जर्नी के दौरान आई थिंक इफ आई गेट अ चांस टू वर्क इन टर्म्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट सो देयर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट सफलता के लिए तो लंबे टाइम तक पढ़ते रहना पड़ता है। कई बार बीच में असफलता भी मिल जाती है, तो फिर उसके प्रोसेस करके उसको आगे बढ़ते रहना और हार्ड वर्क करते रहना, तो अल्टीमेटली सक्सेस मिल ही जाती है। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। फीलिंग तो आती है कि नहीं हो रहा है, बट वही है कि उस टाइम पे फीलिंग्स को थोड़ा साइड में करके और हार्ड वर्क करते रहो, तो एक टाइम के बाद सफलता मिल ही जाती है। खुशी भी थी और खुशी के आंसू भी निकल आए थे उस टाइम पे, तो कि एक लंबे टाइम के बाद सफलता मिल गई, जो चीज़ सोची थी अल्टीमेटली वही मिल गई। फैमिली खुश थी, मैं शाम को आया, सबसे मिला, सारे खुश थे। हाँ, घर पे बाइक है अभी, तो वही चलानी पड़ती है। एनालाइज करके अपना सिचुएशन की मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो। एक टाइम के बाद अच्छे लक के साथ आपको सफलता मिलती है। क्या यही ड्रीम था आपका? हाँ, यही था, बिल्कुल। एक शांति से मिलती है, छुटकारा मिल गया इस चीज़ से। बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा था। वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादातर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो इसी चक्कर में फैमिली से दूर रहना पड़ता है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डिमांड होती है कि उसमें कंसिस्टेंट आइसोलेशन में थोड़ा सा रह के प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है। फैमिली से दूर, फैमिली फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ता है उसमें। मैंने तैयारी 2020 के एंड में शुरू कर दी थी, सितंबर में। उस टाइम कोविड था, तो आई डेंट हैव एनी ह्यूज थिंग टू डू। कॉलेज भी उस टाइम हाइब्रिड या फिर ऑनलाइन मोड पर ही चल रहे थे, तो और एग्जाम्स का भी प्रेशर नहीं था। मैंने फिर कोचिंग अपनी 2021 मई के अराउंड लेनी शुरू करी थी, और फिर 2022 में मैंने मेन फोकस टेस्ट सीरीज पे रखा था, बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था, जिसमें अराउंड 150 डेज 125 डेज का मैंने अपना प्रीलिम्स का टारगेट रखा था, जिसमें मैंने अराउंड 125 140 मॉक्स अटेम्प्ट करे थे। वो प्रीलिम्स वन ऑफ द डिफिकल्ट था पूरे यूपीएससी हिस्ट्री का। वो क्लियर हो जाने के बाद मेरे पास मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि आई वाज नॉट एज मच प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एक्सेप्ट फॉर दी जीएस पेपर्स, and especially I was not prepared for optional at all. This is the same reason why I could not clear mains that year by 10 marks. मेरे essay में बहुत कम स्कोर था 82, और ऑप्शनल में भी काफ़ी कम स्कोर था। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मैंने सिर्फ अपने मेंस को दिया, और मेन फोकस रखा कि मैं कैसे भी करके अपना ऑप्शनल का स्कोर बढ़ाऊं और अपने नोट्स चेंज करें। फिर 2024 का प्रीलिम्स मेरा पॉइंट सम मार्क्स से नहीं हुआ, वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तब मैंने फोकस करा कि मैं सबसे पहले अपना मेंस बिल्कुल स्ट्रांग कर लूं। उसके लिए मैंने एसए की कोचिंग ली। मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेंटर है नव्या मैम, उनसे। शी हैज़ हर ओन वेंचर, उनसे मैंने एसए की कोचिंग ली। और आई थिंक दिस ईयर, अभी तो मार्क्स आए नहीं है, बट आई थिंक कि मेरा एसए का स्कोर काफ़ी इंक्रीज हुआ होगा। और अपने ऑप्शनल पे मैंने बहुत काम किया। फिर जनवरी से मैं वही अपना जो 2 बार मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था, उस पर मैंने दोबारा फोकस करा। और प्रीलिम्स में इस बार मैंने ये सोचा कि मैं कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ूं, और अपने अटेम्प्ट इंक्रीज करने का कोशिश करा। इसलिए मैं इस बार 80-84 मार्क करके आता था। फिर इस बार प्रीलिम्स और मेंस में बहुत कम टाइम गैप था, और बट मैंने शुरू के 10-15 डेज में काफ़ी सिलेबस कवर करने का ट्राई करा, और अराउंड 50 मार्क्स मैंने इन 80 डेज में दिए, जो कि आई थिंक वाज वेरी नाइस ऑफ मी। इससे मेरी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपने डैफ पे किया था, एंड मेरा इंटरव्यू डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर ही इज़ डॉक्टर और नॉट, बीबी स्वेन जी ने लिया था।
जो कि मेजरली 80 to 90% सिर्फ हिस्ट्री और मेरे डैफ पे बेस्ड था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं आंसर नहीं कर पाया था। 3-4 क्वेश्चंस मैंने लगातार कहा था सॉरी आई डू नॉट नो, बट उस टाइम आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। नाउ आई हैव रिसीव्ड अ फेवरेबल रिजल्ट, आई थिंक आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं ज़्यादातर रात में पढ़ता था। मैं सुबह 11-12 बजे उठता था और रात को 4-5 बजे सोता था। तो आई हैव नेवर काउंटेड आवर्स कि मैं इतना घंटे पढ़ता था, बट हाँ मैं अपने टारगेट ज़रूर पूरे करता था, चाहे उसमें मुझे रात लग जाए या दिन लग जाए, बट टारगेट पूरा होना चाहिए एक दिन में। आवर्स डिडंट मैटर फॉर मी। सारा फैमिली सपोर्ट ही रहा है, मतलब इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा परसिवरेंस एंड लव चाहिए होता है, और आप इतने सिक्लूडेड हो जाते हो कि आपकी किसी से बात ही नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई थिंक मेरे मदर फादर, मेरी सिस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जीजा जी, सबका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू देम। मेरी सिस्टर ने ट्राई करा था बट शी कुडंट मेक इट, तो उन्हें देखकर कि ये सिलेबस है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उन्हें देख कर मुझे आइडिया लगा कि अच्छा मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। उसी से मेरा इंटरेस्ट ग्रो हो गया, और खासकर मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। एथिक्स इज वन ऑफ माई कोर्स, वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मेरा फर्स्ट मीन्स में भी 126 आया था, एंड आई एम श्योर कि इस बार भी एथिक्स में अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरे 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल और GS1 और एथिक्स मेरे इंटरेस्ट के हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। फ्यूचर में जो भी सर्विस मिलेगी उसमें अच्छे से अच्छा काम करेंगे।